Good morning, student. Today I am going to discuss about the male reproductive system. Okay. The male reproductive system consists of portions which produce the germ cells and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilizations. One portion, that means one portion is the portion that produce the germ cell. Germ cells means sperm. One portion produce germ cells, that is sperm, and other portion that delivers that sperm to the site of fertilizations. Okay. एक सेल क्या हो गए, जर्म सेल हो गए, स्पर्म हो गए, एंड अदर क्या हो गया, उसका ऑर्गेन जो उस जर्म सेल को ट्रांसफर करता है एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस. In which organ the sperm form, that is testis, and it is located outside the abdominal cavity. Testis is located just outside the abdominal cavity. The membrane in which testis is located is scrotum, that is scrotum. Okay. उस membrane को क्या कहेंगे, scrotum कहेंगे. One question is there here, that why testis lies outside the abdominal cavity? Why? Answer will be because the sperm requires a lower temperature than the normal body temperature. Sperm को जो temperature चाहिए वो lower चाहिए in comparison to the normal body temperature. Okay, so it lies outside the abdominal cavity. इस तरीके से संरचना बनाया हुआ है ताकि वो outside abdominal cavity रहे और sperms can live there. Okay. Now we will discuss about the secretion of the testes. Testes secrete a hormone called testosterone. It secretes a hormone called testosterone. And testosterone is the male sex hormone responsible for the secondary sexual characteristics in male. What are the secondary sexual characteristics in male? Development of mustaches, beard. Okay. बहुत सारा secondary sexual characteristics होता है. ठीक है. ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ठीक है, हेयर डेवलपमेंट इन द प्यूबिक रीजन्स, दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. आवाज भी क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, लड़कों में होता है ना. तो ये कौन हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है. तो टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल. ठीक है. और ये प्यूबर्टी आता है, थोड़ा यंग होता है कोई बच्चा, यानी कि तकरीबन 14-15 साल में ही ये हार्मोन क्या होता है, वो चेंजिंग आना मेल बॉडी में स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. नाउ स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द भास डिफरेंस. स्पर्म इज फॉर्म इन द टेस्टिस. नाउ इट इज डिलीवर्ड बाय द vas deferens which unites with a tube coming from the urinary bladder. The urethra thus form a common passage for both the sperm and urine. Urethra that we have discussed in excretory system. Okay, that is the common passage for both the sperms and urine. Okay, it is the common pathway, common passage for both the sperms and urine. Sperm is made in the testis, but it then transferred to the penis. Along the path of the vas deferens, there are two glands, that is, one is prostate gland and second is seminal vesicles. They add their secretion so that sperms now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provide nutrition, so sperm alive. ये दो ग्लैंड होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और वो क्या करते हैं, अपना सिक्रीशंस देते हैं, जिस रीजन से स्पर्म क्या होता है, अलाइव करता है, उसको न्यूट्रिशंस मिलता है. ठीक है. Sperms are teeny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail and helps them to move towards the female germ cell. Sperms have the tail and that helps in the movement towards the female germ cell. Female germ cell is ovum. Okay. नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ओवम के बारे में. तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है. ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ओके. तो आप डायग्राम देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसको देख लेंगे. तो इसको एक बार रिव्यू में समझ लो कि स्पर्म फॉर्म इन टेस्टिस. टेस्टिस के आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम. ठीक है, उसी में लाई करता है. एंड टेस्टिस लाई
आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल पेट होता है ना, उसके बाहर लाई करता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म को टेम्परेचर जो चाहिए बॉडी से कम चाहिए, ठीक है, तो बॉडी से कम चाहिए तो इसीलिए वो क्या करता है, बॉडी के बाहर लाई करता है। इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वास्ट डिफरेंस होता है, तो स्पर्म बनता है टेस्टिस में और कैरी होता है वास्ट डिफरेंस के थ्रू, एंड थ्रू वास्ट डिफरेंस इट एंटर्स इनटू द पेनिस, ओके। एंड देयर आर 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट हियर, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये दोनों ग्लैंड क्या करते हैं, अपना सिक्रीशंस देते हैं, जिससे कि मूवमेंट जो स्पर्म का होता है वो इजियर होता है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा तो स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म विल डाई, ठीक है। और टेस्टिस का और काम क्या हुआ, वन तो वर्क हुआ इसका कि ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड सेकेंड क्या है, इट रिलीजेस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो दाढ़ी मूछ डेवलप हो जाता है, होता है ना। आवाज क्या होता है, भारी हो जाता है, बचपन में आवाज लोग का पतला होता है, धीरे धीरे क्या होता है, एक समय आता है 13-14 साल में जब लड़कों का आवाज मोटा हो जाता है ना, तो वो होता है। उसके बाद प्यूबिक रीजन्स में हेयर डेवलपमेंट होते हैं, शोल्डर्स का ब्रॉडनिंग हो जाता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, और मेल का बॉडी जो होता है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों डेवलप होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, ठीक है। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो इस सिस्टम को देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है ना, तो उसको करेंगे, फिर एक रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। तो आप रुक जाओ, मैं थोड़ा सा उसको आपको दिखा दे रही हूँ, 1 मिनट, आप 1 मिनट रुक जाओ। चलो, तो हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं, किस किस चीज को हम लोग पढ़े, टेस्टीज को हम लोग पढ़े, है ना। इसने क्या रिलीज किया, स्पर्म रिलीज किया, और क्या रिलीज किया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इस हार्मोन को भी क्या किया, इसने रिलीज किया, ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या किया, बोलो, सॉरी यहां पे लिख देते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, ये डेवलपमेंट करता है, ठीक है। और ये टेस्टीज क्या करता है, इट लाई, कहां पे लाई करता है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में लाई करता है ये, ठीक है। 2 ग्लैंड्स हैं यहां पे प्रेजेंट, ग्लैंड्स क्या करते हैं, पुट देयर सिक्रीशंस, ठीक है, सिक्रीशंस देते हैं, और इस सिक्रीशन से क्या होता है कि न्यूट्रिशन मिलता है, किसको मिलता है न्यूट्रिशन, स्पर्म को क्या मिल रहा है, स्पर्म को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये इसको न्यूट्रिशंस दे रहा है, ठीक है। तो ये है आपका, तो आई थिंक कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। फिर हम बताएंगे, तो टेस्टिस के 2 फंक्शंस बता ही दिए हैं, एक तो स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, इसका क्या है फंक्शन, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, और दूसरे क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाला, हार्मोन का काम आपको हम बता ही दिए हैं। और स्पर्म होता क्या है, स्पर्म क्या होता है, इट इज जर्म सेल है, ये है ना, जर्म सेल है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताएंगे, फिर थर्ड वीडियो जो बनाएंगे तो हम लोग फिर कंबाइंड करके और फिर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको इतना पढ़ लीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय।